Caller's name. So, a very good evening to one and all present here. I hope I'm audible and my PPT is visible. So, आज का ये special session रहेगा on current affairs based on banking. So, इससे related कुछ topics as well as questions रहेंगे जिनका हम discussion करेंगे और उसका उनके बारे में sort of revision जैसा हो जाएगा. So, जो भी developments हुए December month 2022 में related to banking, finance, commerce, economy, innovation, जो भी relevant topics हैं उन पे हम discussion करेंगे. So ये questions है पूरे current affair based. So इनके बारे में हम देखते हैं. According to RBI, India's GDP growth rate for financial year 23 is predicted to be. So आप इनके answers chat box में दे सकते हैं simultaneously. और ऑप्शंस है 7.0%, 6.8%, 6.5 एंड 6.0. सो जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की गई है सब ऑप्शंस दे रहे हैं बी 6.8%. So the correct answer is 6.8%. The Monetary Policy Committee MPC of the Reserve Bank of India released the Monetary Policy Statement 22-23 resolution of the MPC. उसमें ये डिस्कशन किया गया कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो मोस्ट प्रोबेबली 6.8% होगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023. The Reserve Bank of India has signed a current swap agreement with the Maldives Monetary Authority under the SARC currency swap framework, under which Maldives may take several tranches up to a maximum of how much amount from RBI. So, कितने amount of RBI जो maximum amount है वो Maldives tranches ले सकता है from RBI. USD 200 million, USD 150 million, USD 100 millions and USD 50 millions. So, mixed answer है A, B, A, B. So हम देखते हैं the correct answer. The correct answer is A. Reserve Bank of India has signed a current swap agreement with Maldives Monetary Authority और उसकी जो maximum value है वो tranche की वो है $200 million जितना वो ले सकते हैं from RBI. So the answer is USD 200 million. Which of the following statements is true about Reserve Bank of India issuing sovereign gold bonds? So, कौन इनमें जो statements है कौन-कौन से statements इस respect में सही हैं जो RBI sovereign gold bond से related issues करता है वो कौन से statement इनमें से सही हैं related to sovereign gold bond? So, the Reserve Bank of India will issue 2 tranches of sovereign gold bond in December and March, which will be open for public subscription. So, ये RBI Reserve Bank of India के tranches पे based question है जो sovereign bond के लिए release किया जाएगा. तो इनमें से कौन सा statement correct है? So क्या Reserve Bank of India दिसंबर और मार्च में ये 2 tranches release करेगा? सिर्फ दिसंबर के मंथ में release करेगा? सिर्फ मार्च के मंथ में release करेगा? या ना ही दिसंबर में ना ही मार्च किसी में भी release नहीं करेगा? तो ये options हैं. The Reserve Bank of India will issue 2 tranches of sovereign gold bond in December and March, which will be open in public subscriptions. So ये सारे statement में से कौन सा statement correct है? So the
everyone is going for A, तो इसका सही जवाब है A। जो दिसंबर और मार्च में जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांचेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। So RBI is to issue 2 tranches of sovereign gold bond which will be open for public subscription in December and March. So इसका आंसर है ऑप्शन A। The Reserve Bank of India will open Series 3 for subscription during 19th of March. So जो Series 3 है वो दिसंबर के मंथ में ओपन थी, और जो नेक्स्ट सीरीज है वो फ्रॉम 6 मार्च टू 10 मार्च 2023 तक अवेलेबल रहेगी फॉर द पब्लिक टू apply for subscription. The Reserve Bank of India penalized which of the following foreign banks operating in India rupees 2.66 crore for not following directions on cyber security framework. So Reserve Bank of India ने recently एक बैंक को penalize किया for rupees 2.66 crore rupees. क्यों किया? क्योंकि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो रूल्स थे उसे फॉलो नहीं किए गए। तो वो कौन सा बैंक है, कौन सा फॉरेन बैंक है? सिटी बैंक, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, HSBC बैंक या ड्यूशे बैंक? सो सबने बी के लिए वोट किया है, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत। सो करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत। उसको अभी रिसेंटली आरबीआई ने पेनलाइज किया फॉर 2.66 करोड़ फॉर नॉट फॉलोइंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के जो भी रूल्स थे वो नहीं फॉलो करने पे आरबीआई ने उन्हें पेनलाइज किया। Which of the following payment solution companies has requested that the RBI temporarily halt the onboarding of new clients for their payment processing business? So इनमें से कौन सा पेमेंट सिस्टम है जिसने आरबीआई को रिक्वेस्ट किया है कि वो न्यू क्लाइंट्स को लेना थोड़ी देर के लिए रोक दें? तो पेटीएम है, गूगल पे, रेजर पे, फोन पे। ओके, सो आंसर्स हैं सी। सब सी के लिए जा रहे हैं, रेजर पे, एंड द करेक्ट आंसर इज रेजर पे। द आरबीआई हैज asked Razorpay and Cashfree to temporarily stop the onboarding of new customers for their payment processing business. So इसमें Cashfree करके भी एक ऐप है, उसके लिए भी कहा है, लेकिन इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग Razorpay is the correct answer. It is a temporary move and has no impact on Razorpay's business existing operation. According to Razorpay, they received in principle approval from RBI, so RBI ने Razorpay को रिक्वेस्ट किया। The government of India initially introduced the one rank one pension policy in which year? So ये recently news में थी। So ये जो पॉलिसी है, पेंशन प्लान, ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? 2013, 14, 15 एंड 16। So प्रमोद जी ने डी कहा है और अखिलेश कुमार जी ने भी डी कहा है। So हम देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज C. The one rank one pension scheme revision for the pension for retired members of armed forces and their family was given in 2015. Up Reserve Bank of India implemented 4-tier regulatory norms on UCBs. So ये एक और टॉपिक जो बहुत न्यूज में था वो था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4-tier रेगुलेटरी नॉर्म्स अप्लाई किए गए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। सो बिसाइड्स द सेंट्रल बैंक हैज कम आउट विथ नॉर्म्स पर्टेनिंग टू द नेट वर्थ एंड कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ द बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द एक्सपर्ट कमिटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NS Vishwanathan, the former Deputy Governor, Reserve Bank of India, to examine the issue in urban cooperative banking sector and to review regularity and supervisory approach for strengthening the sector. So इसमें RBI ने urban cooperative banks पे 4-tiered regulatory norms अप्लाई किए गए हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी बुलाई गई और इस कोऑपरेटिव बैंक पे कुछ रिव्यू रेगुलरिटी अप्रोच किया गया है टू स्ट्रेंथन दिस सेक्टर।
और इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क 2022 में लॉन्च किया गया, एंड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डिपॉजिट यूसीबी इट विल कम फोर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। और मॉनेटरी पॉलिसी में भी आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2022, आरबीआई रेपो रेट हाइक बाय 35 bps to 6.25%। तो ये भी करंट न्यूज में था कि आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया है, एंड द डिसीजन ऑफ द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास headed 6-member monetary policy committee has been announced in the consecutive 5th hike this year। ये इस ईयर का 5th हाइक था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज रेज्ड द रेपो रेट बाय 35 basis points bps to 6.25% with immediate effect, making loans expensive. So as a result, loans expensive हो गए हैं। The policy rate is now at the highest level since 2018. The RBI has maintained policy stance with withdrawal of accommodation. So ये एक और जो है रेपो रेट से रिलेटेड न्यूज है जो कि लेटेस्ट है। इसमें ये है कि रेपो रेट जो है आरबीआई ने वो 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, और एज अ रिजल्ट जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में एक न्यू चेंज आया है कि आरबीआई का रेपो रेट हाइक कर दिया गया है बाय 35 बेसिस पॉइंट, और अब जो हो गया है 6.25% हो गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। इससे ये हुआ है कि लोन लेना और एक्सपेंसिव हो गया है, और अब तक का अगस्त 2018 के बाद से ये जो रेपो रेट है ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रेपो रेट है। सो ये इस ईयर में 5वीं बार ये रेपो रेट को बढ़ाया गया है, और इससे यही होगा कि लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। सो ये भी रेपो रेट से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज थी। As per the recent change in the definition of MSME, what is the investment limit for an enterprise to be classified as medium enterprise? So जो भी लेटेस्ट डेफिनेशन आई है, जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं एमएसएमई में, उसके अकॉर्डिंग what is the investment limit for an enterprise to be classified as medium enterprise? 20 crores, 25 crores, 50 crores, 75 crores। सबने सी के लिए वोट किया है, so the correct answer would be definitely C. So the Union Cabinet Minister has approved further changes to the definition of micro, small and medium enterprises. Earlier, micro units can be up to 1 crore investment, turnover 5, while small units, so ये डिटेल्स दी हुई हैं कैसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को 5 लाख तुरंत 4 लाख दे दे, ताकि धीरे धीरे जब भर दे तो फिर खत्म हो जाता है, और 5%। सो माइक्रो यूनिट्स के लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल यूनिट्स के लिए 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 50 करोड़, एंड फॉर मीडियम यूनिट इन्वेस्टमेंट जो था फ्रॉम 20 करोड़ से 50 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया गया है, और जो टर्नओवर लिमिट है वो 100 करोड़ से 250 करोड़ तक कर दिया गया है। और the cabinet also approved rupees 20,000 crore funds for stressed entities and equity infusion of 50,000 crore, which is the first bank in India to launch a mobile application for opening a current account. So, okay, प्रमोद जी ने एक कहा है ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। सो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने फर्स्ट टाइम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट?
सो हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. द करेक्ट आंसर इज IndusInd Bank. IndusInd Bank has recently launched mobile application based facility for opening a current account, thereby becoming the first bank in the country to do so. So IndusInd Bank इसका करेक्ट आंसर है. उन्होंने फर्स्ट बैंक बन गए वो इस कंट्री के जिन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट. The new facility can be used to open current accounts for all kinds of business in a few hours. The facility is equipped with the bank's Indus corporate mobile app, and the officials can capture and verify information about customers and their businesses on the real-time basis. So ये मोबाइल जो बैंक का मोबाइल ऐप है इंडस कॉर्पोरेट जो मोबाइल ऐप उसके थ्रू ये बैक्ड है और ये इस कंट्री इंडिया का पहला ऐसा बैंक है IndusInd बैंक जिन्होंने करंट अकाउंट खोलने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया. अब RBI ने लॉकर रूल्स में भी कुछ रिवीजन किया है जो कि 1 जनवरी से implement होंगे. So the Reserve Bank of India recently said that all leading banks should issue the locker agreement to its holders before 1st Jan 2023 as the new locker rules will be implemented from that day. Earlier, the RBI has announced revised guidelines on August 2021 which became effective from 1st January 2022. Now, earlier भी कुछ रूल्स आए थे इन ईयर अगस्त 2021 और वो इम्प्लीमेंट हुए 1 जनवरी 2022 और इस बार उन्होंने दिसंबर में कुछ न्यू रूल्स दिए हैं रिलेटेड टू लॉकर पॉलिसी और वो इम्प्लीमेंट होंगे 1 जनवरी 2023 से. और इसमें जो मेजर चेंज है नाउ ऑल द लॉकर ओनर्स must display their eligibility for a new locker arrangement and sign a renewal policy prior 1 January 2023. So इस लॉकर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी अपडेशन है वो उनको नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा और उसमें जो ये है कि जो भी लॉकर होल्डर्स हैं उनको अपना डिस्प्ले करना होगा अपनी एलिजिबिलिटी न्यू लॉकर अरेंजमेंट के लिए और एक रिन्यूअल एग्रीमेंट उन्हें साइन करना होगा prior 1 January 2023 according to this new locker rules given by RBI. The RBI अब एक और related news है CBCD से related कि Reserve Bank has announced the launch of the first pilot for retail digital rupee on 1 December 2022. So ये भी एक recent development था कि CBCD बहुत इस ईयर के बजट में लॉन्च किया गया बारे में डिस्कशन किया गया था. नवंबर में CBCD के 2 टाइप्स होते हैं. सो होलसेल का जो पायलट था होलसेल CBCD वो नवंबर में स्टार्ट हो गया था और दिसंबर में रिटेल CBCD स्टार्ट हो गया उसका पायलट. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रॉडली डिफाइंस CBDC digital rupee as the legal tender issued by the central bank in a digital form. So CBDC के बारे में अगर हम थोड़ा जाने तो वो एक डिजिटल फॉर्म का करेंसी है जैसे कि हमारी फिएट करेंसी है वैसा ही ये डिजिटल करेंसी हुआ. 1 रुपी हमारे पास फिजिकली भी प्रेजेंट होता है तो उसी डिनोमिनेशन में हमारे पास डिजिटली ये रुपी रहेंगे CBDC. It is akin to sovereign paper currency but takes a different form exchangeable at par with the existing currency and shall be accepted as a medium for payment, legal tender and safe store of value. So CBCD एक डिजिटल करेंसी है जो कि हमारी जो नॉर्मल फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी है उसका एक डिजिटल फॉर्म रहेगा और इसको जो गवर्नमेंट है वो एज मीडियम ऑफ पेमेंट इसे एक्सेप्टेंस देती है. इसे लीगल टेंडर की तरह भी ट्रीट किया जाता है और safe store of value because it is backed by government. RBI. CBCD is a digital or virtual currency, but it is not comparable to the private virtual currency that have mushroomed over the past few decades. So ये एक virtual या digital currency तो है CBDC, but ये वो उन करेंसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता जैसे बिटकॉइन और ये सब प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज है वो इनसे काफी डिफरेंट है.
ये हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा बैंक बैक्ड एक करेंसी है। जैसे हम फिजिकल करेंसी यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिजिटल फॉर्म में है। सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है सीबीडीसी का फुल फॉर्म, और ये हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है। अब गवर्नमेंट हाइक्ड इंटरेस्ट रेट ऑन सम स्मॉल सेविंग स्कीम्स बाय 20 to 210 basis points for January to March. So in the month of December, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंटरेस्ट रेट हाइक्स, कुछ स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, और वो स्कीम्स हैं जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च क्वार्टर, बट केप्ट द रेट फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड सुकन्या समृद्धि योजना अनचेंज फॉर दिस पीरियड। सो कुछ स्कीम्स के लिए हाइक किए गए हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए, बट एट द सेम टाइम पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट्स को उतना ही रखा गया है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैज बीन रेज्ड बिटवीन 20 to 110 basis points and now range from 4% to 7.6%. So ये 2 to 110 basis points से इसे इंक्रीज कर दिया गया है, और अब इसका इंटरेस्ट रेट है 4% to 7.6%. Which of the following financial institutions recently introduced zero free banking on saving accounts? So इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली जीरो फ्री बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया? एसबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूको बैंक एंड कैनरा बैंक. So answers B, B, B. Everyone is voting for B. So let's see the correct answer. IDFC First Bank. Private sector IDFC First Bank has announced a waiver of charges on a number of customer-centric services such as cash deposit, withdrawal, demand draft, IMPS, and SMS alerts, among others, ahead of its foundation day. So, bank has announced zero fee banking on saving accounts. So, zero fee banking saving accounts पे उन्होंने launch किया. The customer with as little as 10,000 in average monthly balance in saving accounts and rupees 25,000 in average monthly basis current account will be eligible for these services at no cost. So customers जिनके पास as minimum as 10,000 10,000 रुपए भी हैं कम से कम, वो इस monthly average monthly balance in saving accounts के लिए 10,000 है, और करंट अकाउंट के लिए 25,000 मिनिमम अमाउंट के साथ जो कस्टमर्स हैं वो इस सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं. जीरो फी बैंकिंग जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है. एडाई टू इंट्रोड्यूस बीमा वाहक, अ न्यू distribution channel to tap rural market. So IRDAI will soon introduce a new distribution channel, बीमा वाहक, to increase penetration of insurance policy in rural area. So rural area में insurance policy के penetration को increase करने के लिए IRDAI द्वारा एक new distribution channel बीमा वाहक launch किया गया है. बीमा वाहक्स are expected to distribute life and general insurance policy in rural areas. Most likely, this would be a women-centric distribution channel in which individual women will be encouraged to take up insurance distribution business in rural areas. So, rural areas में insurance policy के penetration को बढ़ाने के लिए IRDAI ने एक distribution channel launch किया है बीमा वाहक, और इसमें ये बीमा वाहक जो होंगे, जो पर्सनल जो इंडिविजुअल्स होंगे, वो जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एम करेंगे.
और इसमें मोस्टली ये रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट को वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। मीन्स इसमें जो भी बीमा वाहक होंगे, जो पर्सनल्स होंगे, वो मोस्टली वुमेन रहेंगे, ताकि वुमेन कैन बी इनकरेज्ड मोर, ऑल द मोर, और डाइवर्सिटी बढ़े, इक्वालिटी हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। सो इस स्कीम के साथ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को भी इंक्रीज करना है, मोस्टली इन रूरल एरिया, अलॉन्ग विथ वुमेन एम्पावरमेंट। सो ये थे कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स जो बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड थे। और सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। मैडम थोड़ा सा बीमा वाहक का थोड़ा बैक कीजिएगा। हाँ, ये वाला थोड़ा देखना था। ओके, थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम। ओके मैडम, थैंक यू मैडम।